Hare Nama, Hare Nama eva kevalam, Kalo nasteva, nasteva, nasteva gatiranyata. हरे कृष्णा। तो जस्ट हमारे यहाँ पे निताय नाद्या गौर बिहारी आए हुए हैं, तो सबको दर्शन देने के लिए तो ये हमारे डिवोटी है जो यात्रा पे गए, तो उन्होंने बहुत ही कृपा करके इनको उन्हीं के घर में सारे भगवान का ही घर है, तो एक उनके घर के छोटे कमरे में उन्होंने उनको रखा है। तो हरे कृष्णा। तो इस बहुत ही मंगलमय दर्शन के साथ आज का भागवतम का कक्षा का प्रारंभ करते हैं। और बहुत बहुत धन्यवाद सर्वरूपा माता जी, आपका इतना सुंदर कीर्तन भगवान सुन रहे थे। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। तो ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नाम्ने नमस्ते सारस्वते देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणी। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। तो आज हम देख रहे हैं तीसरे स्कंद का पहला अध्याय का श्लोका क्रमांक 11 और 12। तो श्लोका है, अजातशत्रो प्रतियच्चदायं तितिक्षसतो दुर्विषहं तवागः सहानुजो यत्र वृकोदराहि श्वसन श्वस श्वसन रुषायत्वम अलम बिभेषि। अनुवाद: Vidura said, "You must now return the legitimate share to the Yudhishthir, who has no enemies and who has been forbearing through untold suffering due to your offenses. He is waiting with his younger brothers, among whom is a revengeful Bhima, breathing heavily like a snake. Surely you are afraid of him." Shloka 12. Partamstu devo bhagavan mukundo grihi गृहीतवान् सक्षिति देव देव आस्ते स्वपुर्यां यदुदेव देवो विनिर्जिता शेष निर्देव देवः। Translation and purport by His Divine Grace A.C. Bhakti Vedanta Swami Srila Prabhupada ki jai. Lord Krishna, the personality of God, has accepted the sons of Pritha as his kinsmen, and all the kings of the world are with Lord Shri Krishna. He is present in his home with all his family members, the kings and princes of Yadu dynasty, who have conquered an unlimited number of rulers, and he is their Lord. Purport: Vidura gave Dhritarashtra very good counsel regarding political alliance with the sons of Pritha, the Pandavas. The first thing he said was that Lord Krishna was intimately related with them as a cousin because Lord Krishna is the supreme personality of Godhead. He is worshipable by all Brahmanas and demigods who are the controllers of the universal affairs. Besides that, Lord Shri Krishna and his family members, the royal order of Yadu dynasty, were the conquerors of all kings of the world. The Kshatriyas used to fight the kings of various dominions and kidnap the beautiful princess daughter after conquering their relatives. This system was laudable because the Kshatriyas and the princesses would be married only on the basis of the chivalry of conquering Kshatriya. All the young princes of the Yadu dynasty married the daughters of other kings in this way by chivalrous force, and thus they were conquerors of the kings of the world. Vidura wanted to impress upon his elder brother that fighting with Pandava was fraught with many dangers because they were supported by Lord Shri Krishna, who had conquered even in his childhood demons like Kamsa and Jarasandha and demigods like Brahma and Indra. Therefore, all universal power was behind the Pandavas. मुखम करोति वाचालम पंगुम लंघयते गिरिं यत्कृपातम हम वंदे श्री गुरु दीनतारिणं परमानंद माधवम श्री चैतन्य ईश्वरम। हरे कृष्णा। तो
तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि धृतराष्ट्र जो है बहुत ही एक्चुअली भाग्यशाली था। क्यों भाग्यशाली था? क्योंकि उसको साधु संग था उसके पास। विदुर विदुर जी जो उनके भाई थे वो एक्चुअली देखेंगे तो धर्मराज ही है। तो हम देख सकते हैं कि उनको विदुर जो है अपना काउंसलिंग कर रहे थे, उनको प्रचार कर रहे थे या फिर उनको ज्ञान दे रहे थे। और इतना ही नहीं, वो जो पांडव है, जो भगवान के शुद्ध भक्त है, जैसे कुंती महारानी और सारे पांडव उनके संग में वो एक ही महल में रहते थे। मतलब रोज उनको मतलब वैष्णव का संग उनको प्राप्त था। इस तरीके से अगर देखेंगे तो जो धृतराष्ट्र और दुर्योधन और सारे जो उनके पुत्र, धृतराष्ट्र के पुत्र बहुत ही भाग्यशाली थे कि उनको बचपन से ही साधु संग मतलब शुद्ध भक्तों का संग मिल रहा था। लेकिन उन्होंने अपने अहंकार या अपने जो क्या कहते हैं कूटनीति के कारण अपना जो भाग्य जो उनका जो हम लोग भाग्यशाली कहते हैं उसको दुर्भाग्य में खुद उन्होंने परिवर्तन किया। क्योंकि बचपन से उनको साधु का संग मिल रहा था, शुद्ध भक्तों का संग मिल रहा था, लेकिन वो संग ले नहीं रहे थे। तो हमको यहाँ पे पता चलता है कि कितनी बार मतलब डिवोटी का जो एसोसिएशन वो तो रहता है, लेकिन अगर हम डिवोटी के साथ रहेंगे लेकिन अगर उनका संग नहीं लेंगे तो उससे कोई भी फायदा हमको नहीं होगा। तो देखिए, अभी धृतराष्ट्र तो बचपन से अंधे थे, मतलब वो आंखों से देख नहीं पा रहे थे। मतलब उन्होंने अपने बच्चों को मतलब देखा भी नहीं, फिर भी उनको कितना आसक्ति था अपने बच्चों के प्रति। इसलिए वो हम लोग भजन गाते हैं ना, सगुरु स पिता चापि स मातवो बंधवोपि सह शिक्षयेत् चेत् सदा स्मार्तुम हरे नाम एव केवलम। मतलब वही सच्चा गुरु है, वही सच्चा पिता है या बंधु। सगुरु स पिता चापि स मातः बंधुओपि सह। तो यही एक्चुअली हमारे सही में पिता या गुरु या बंधु वही है जो हमको क्या सिखाते हैं? शिक्षा ये चेत सदा स्मार्तुम, हमेशा भगवान का स्मरण करने का और भगवान का नाम का गुणगान करने का, ये जो हमको सिखाते हैं सही में यही हमारे शुभ चिंतक है। तो धृतराष्ट्र ने अपने बच्चों को तो देखा भी नहीं, मतलब हम जानते हैं वो बचपन से अंधे थे, फिर भी कितना मोह था उनको। तो सोचिए अगर वो देख पाते तो और क्या होता। मतलब दुर्योधन को वो उन्होंने कभी समझाया नहीं कि वो जो कर रहा है, उनको हालांकि पता था कि जो दुर्योधन कर रहा है वो गलत है, क्योंकि उतनी तो बुद्धि हर किसी को होती है। लेकिन वो एक तो जन्म से आंखों से अंधे थे और दूसरा इतना मोह था उनको अपने पुत्रों के प्रति कि वो मोह से भी अंधे थे। तो यहाँ पे मतलब हम लोग कहते हैं ना, जब शुद्ध भक्त के संपर्क में हम आते हैं तो हमारा जीवन परिवर्तन होता है। लेकिन यहाँ पे वो विदुर उनको समझा रहे हैं। अभी आगे चल के तो मतलब जैसे युद्ध खत्म होने के बाद जब उन्होंने देखा कि सारे उनके पुत्र मारे गए हैं, फिर जब विदुर जी वापस उनको और मतलब गंभीरता से जब उनको उनका वचन भी गंभीर हो जाता है विदुर का, वो क्या कहते हैं, तुम कुत्ते की तरह यहाँ पे पड़े हुए हो, ऐसे ये शब्द वो प्रयोग करते हैं। क्योंकि कभी कभी क्या होता है, जब आदमी बहुत ही तमोगुणी में रहता है तो उसको थोड़ा हिलाना पड़ता है और कभी कभी ऐसे वाक्य का भी प्रयोग करना पड़ता है। और तुम मतलब युधिष्ठिर के बोलते ना, मतलब एक कुत्ते की तरह युधिष्ठिर के रोटी पे पल रहे हो। तब ऐसा जब सब वाक्य वो सुनते हैं आगे चल के, तब वो फिर महल छोड़ के जाते हैं। लेकिन अभी इतना मोह है उनको कि विदुर जी उनको समझा रहे कि ये जो राज्य है उसमें जो उनका हिस्सा है, ऐसा नहीं बोल रहे कि पूरा राज्य दो, युधिष्ठिर का जो हिस्सा बन रहा है पांडवों का वो आप उनको दे दीजिए। तो जैसे भगवद गीता में कहते हैं ना, यह शास्त्र विदम उत्सृज्य वर्तते काम कारतः यह न सिद्धिम अवाप्नोति न सुखम न पराम गति। तो अगर हम
जो शास्त्र में दिया गया है उसकी तरह से उस हिसाब से अगर हम अपना जीवन व्यतीत नहीं करेंगे, न मतलब सिद्धि न आपनोति न सुखम न पराम गति। तो हम सब जानते हैं कि पांडवों का मतलब युधिष्ठिर महाराज का एक्चुअली राज्य पे हक था, और वो धर्मराज भी थे। युधिष्ठिर तो दो मतलब एक नहीं, दो धर्मराज युधिष्ठिर, इनको धृतराष्ट्र को संग मिल रहा था। एक था विदुर का और एक था युधिष्ठिर महाराज का। तो मुझे बताइए इससे ज्यादा और भाग्य क्या हो सकता है। हम लोग बोलते ना भक्तों का संग, भक्तों का संग। तो धृतराष्ट्र ने अपना भाग्य खुद दुर्भाग्य में बदल दिया, क्योंकि बचपन से युधिष्ठिर महाराज और पांडव और विदुर इनका संग होते हुए भी, मतलब सोचिए जब हमको नरक जाने के लिए मतलब वो पूरा प्रयास नरक जाने के लिए कर रहे थे, जबकि भगवान ने उनको आध्यात्मिक जगत जाने का पूरा योजना बनाई थी। इतना सारा मतलब इर्द गिर्द सारे भक्त से उनको भक्त का संग दे रहे थे भगवान। तो बहुत टाइम जब हम बोलते हैं ना भगवान दयालु नहीं है, भगवान कितने, मतलब बहुत सारे लोग बोलते हैं जब जीवन में कष्ट आता है, लेकिन एक्चुअली भगवान सबसे बड़े दयालु है। हम ही जो है नरक जाने की योजना खुद बनाते रहते हैं, अपनी जो मंद बुद्धि या जो बद्ध जीव और ये जो अपने काम, जो ये भौतिक कामनाएं हैं, इसको पूर्ति करने के लिए भगवान के दिए हुए शास्त्र को अनदेखा करके हम खुद अपना जो बोलते ना गड्ढा खुद खोदते हैं नरक जाने के लिए। और एक शास्त्र में उदाहरण आता है, मतलब साधु संग जब हम नहीं लेते और मतलब मतलब जो गलत संग करते तो क्या, तो जैसे अभी हाल ही में हमने दिवाली मनाई, तो एक धन्वंतरी त्रयोदशी के बाद अगला दिन होता है नरक चतुर्दशी। तो ये नरकासुर या फिर भौमासुर ये पुत्र थे किसके, वराह, भगवान वराह ने जब पृथ्वी माता को छुआ तब ये संतान उत्पन्न हुई थी, भौमासुर। तो सोचिए संतान उत्पन्न हुई भगवान के छूने से, मतलब वराह देव जो भगवान के अवतार है, और माता थी पृथ्वी, तो उनके द्वारा उत्पन्न हुआ, लेकिन सबसे बड़ा असुर बन गया। क्यों? वापस संग के कारण। तो ऐसा नहीं कि भगवान से उत्पन्न हुआ तो दिव्य, तो अगर हम संग नहीं करेंगे, सही से साधु का संग नहीं करेंगे, तो इवन भगवान से उत्पत्ति किया हुआ संतान भी असुर बन सकता है। जैसे कि उसका उदाहरण है भौमासुर। और फिर उदाहरण आप लीजिए हमारे प्रहलाद महाराज का। प्रहलाद महाराज का पिता कौन है? हिरण्यकशिपु। लेकिन उनका मतलब बहुत ही मतलब नारद मतलब संत नारद मुनि का उनके ऊपर इतना ज्यादा कृपा हुआ कि माता कयादु के जब वो पेट में ही थे, पेट से ही उन्होंने भगवान की भक्ति उन्होंने नारद मुनि के मुख से सुनी, जो शुद्ध भक्त है। और इतने मतलब क्या कहते हैं, भक्त शिरोमणि, हम उनको कहते हैं भक्त शिरोमणि प्रहलाद महाराज वो बने। तो हम देख सकते हैं कि संग होते हुए भी अगर हम संग नहीं लेंगे तो फिर हम अपनी दुर्गति को प्राप्त होंगे। धृतराष्ट्र ने जो पुत्र खोए, अपने 100 पुत्र खोए, वो उनके ही वजह से, मतलब उसमें ना भगवान की गलती है ना पांडवों की गलती है। जो कोई कहते हैं ना कि भगवान ने युद्ध रचाया वगैरह, मतलब ये अल्प ज्ञानी है, मतलब जिनका बुद्धि माया द्वारा चुराई गई, ऐसे ही लोग बात करेंगे जब तक उनको शास्त्र का सार नहीं पता या शास्त्र में क्या लिखा गया पता नहीं। तो ये सारा धृतराष्ट्र ने अपने ही, कहते हैं ना, अपने ही पैर पे कुल्हाड़ी मारने का जैसा काम किया, इतना अच्छा उनको संग होते हुए। और विदुर जी उनको समझा रहे हैं कि आप जिनके साथ युद्ध छेड़ रहे हो, एक तो वो पूरी तरह से शुद्ध भक्त है, और उनके ऊपर किसका कृपा है या किसका हाथ है? स्वयं भगवान का। कृष्ण जो है स्वयं पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान, जैसे कहते हैं ना, मारे कृष्णा राके के और राके कृष्णा मारे के। अगर भगवान किसी को बचाना चाहते हैं तो फिर मतलब कौन, मतलब ऐसा कौन जीव या कौन कैसा कोई ताकत नहीं है जो उस जीव को छू सके।
और अगर जिस दिन कृष्ण ने सोच लिया कि मुझे इसको दंड देना है या इसका वध करना है, तो फिर खत्म, फिर कोई भी हो उसको कोई बचा नहीं सकता। मतलब इतना तक जो विदुर जी भगवान कृष्ण के बारे में इनको बताते हैं धृतराष्ट्र को। और ऐसा नहीं कि धृतराष्ट्र को ये पहली बार पता चल रहा था। जब उनको वनवास भेजा गया था पांडवों को, तो दुर्योधन ने बहुत सारे योजना बनाई उनको मारने के लिए, और हर एक योजना में धृतराष्ट्र का हाथ था और उसको पूरा ज्ञान था कि दुर्योधन किस तरह से पांडवों को खत्म करना चाहता था। और वो देख रहा था कि हर एक योजना विफल हो रही है, मतलब वो मार ही नहीं पा रहे। तो ऐसा नहीं कि धृतराष्ट्र को अचानक पता चला कि वो भगवान है और उनके ऊपर, तो पहले से वो देख रहे हैं कि कृष्ण के होते हुए हम पांडवों का बाल भी बांका नहीं कर पा रहे, और जितना भी हम योजना बना रहे हैं भगवान उनको किस तरह से रक्षा कर रहे हैं। तो मतलब ये सब जानते हुए भी देखिए धृतराष्ट्र, मतलब कहते हैं माया कितनी प्रबल है, मतलब किस तरह से हमको आच्छादित कर सकती है। इसलिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि हम जब भक्ति में आए हैं तो कभी भी ऐसा मत सोचिए कि अभी हमको वापस माया पकड़ नहीं सकती या छू नहीं सकती। ये भी एक तरह की मूर्खता है, क्योंकि कभी कभी हम लोग भक्ति करते करते भी हमको अहंकार आ सकता है कि अभी तो मतलब मुझे पूरी तरह से पता चला है कि कृष्ण भगवान है, तो मैं ये भक्ति का पथ नहीं छोड़ूंगा। हमको लग सकता है ऐसा, और कोई भी आए, कोई भी मुझे पद भ्रष्ट नहीं कर सकता, मैं उसको काउंटर एक्ट करूंगा। तो भगवान देखेंगे कि ये शुद्ध भक्ति का परिणाम है या अहंकार का परिणाम है। तो अगर वो अहंकार की वजह से हमको ऐसा लग रहा है, तो फिर भगवान हमारे सामने बहुत सारे टेस्ट रखेंगे, और अगर वो अहंकार के वश में हम टेस्ट को पास करने का कोशिश करेंगे तो हम भक्ति के पथ से निकल जाएंगे। क्यों? क्योंकि भगवान नहीं चाहते कि हम माया में रह के भक्ति करें या हमारे अंदर कोई गलत फहमी हो। इसलिए हमेशा हमको नम्र होके भक्ति करना है, और हमेशा ये याद रखना है कि हम जो भक्ति मार्ग में आए हैं वो अपनी योग्यता से नहीं, बल्कि भक्तों के जो शुद्ध भक्त है, गुरु है, हमारे शिला प्रभुपाद, इनकी कृपा है, इसके वजह से हम भक्ति मार्ग में टिके हुए हैं। हमेशा याद रखना चाहिए, आप कितना भी प्रामाणिकता से भक्ति क्यों ना कर रहे हो, वो प्रामाणिकता भी, वो योग्यता जो है, प्रामाणिकता का योग्यता, वो भी शुद्ध भक्तों की कृपा के वजह से है। तो ये हमेशा याद रखें, हम जितना निम्न स्तर पे अपने आप को रख के भक्ति करेंगे उतना हमारा भक्ति अच्छा होगा। तो धृतराष्ट्र को विदुर जी इतने अच्छी तरह से समझा रहे हैं, और और पांडवों का भी देखिए कितना भगवान के ऊपर विश्वास था। जब उनके साथ इतना सारा समस्याएं, कष्ट उनके जीवन में आ रहे थे, उन्होंने कभी भी भगवान को कंप्लेन नहीं किया कि भगवान ये क्या, मतलब या उन्होंने मतलब कृष्ण को ऐसा नहीं बोला कि भगवान ये सारा आप निपटा दीजिए, हमको नहीं हो रहा है सहन, ये 12 साल वनवास, अज्ञातवास, ये सब हमको नहीं करना है। कभी उन्होंने नहीं कहा। उन्होंने बस उनके लिए एक ही आनंद का ये था, आनंद, उनका जीवन एक ही आनंद में था कि भगवान हमारे साथ है, खत्म। हमारे साथ भगवान है, अभी जो कुछ होना है होने दो, हम लोग इसको मतलब उसका हम सामना करेंगे। तो ये हमारा भी एक चेतना होनी चाहिए। अभी हमारे जीवन में शिला प्रभुपाद ने गौर निताय, पंचतत्व, श्री श्री राधा माधव, ये सब हमारे जीवन में प्रभुपाद और हमारे गुरु की कृपा से आ गए हैं। मतलब भगवान हमारे भी जीवन में आ गए हैं। अभी हमको कभी भगवान से ये नहीं कहना है कि भगवान मैं आपकी भक्ति करूंगा, बस इतना कीजिए कि मेरे जीवन में कोई दुख ना आए। तो फिर वो भगवान कहेंगे कि मतलब ये भक्ति इसलिए कर रहा था कि जीवन में दुख ना आए। मतलब ये भी एक तरह का सकाम कर्म हो गया। मतलब भक्ति करने के पीछे का एक हेतु है। लेकिन शुद्ध भक्त क्या है? कुंती महारानी जैसा। भगवान आप चाहे तो जितना चाहे दुख दीजिए, बस इतना कि आप हमेशा हमारे जीवन में रहिए। तो हमको सबको प्रसंग पता है कि जब दुर्योधन और अर्जुन नारायणी सेना या फिर कृष्ण को मांगने जाते हैं, तो जब दुर्योधन नारायणी सेना चुनाव करके चला जाता है,
तो फिर भगवान ना ऐसे मजाक में अपने भक्त को कहता है, अर्जुन को, कि ये एक बहुत ही अच्छा वाक्य है, सुनाना चाहता हूँ कि आ, आ, हार निश्चित है तेरी। अब ये भगवान जो है अर्जुन को बोल रहे हैं मजाक में, हार निश्चित है तेरी, सदा रहेगा उदास, माखन दुर्योधन ले गया, छाछ बची तेरे पास। तो क्या कह रहे भगवान, माखन यानी नारायणी सेना तो दुर्योधन ले गया है अभी तेरे पास खाली छाछ बची, मतलब अभी तू हार तो निश्चित है और हमेशा उदास रहेगा हारने के बाद कुरुक्षेत्र। तो अभी देखिए अर्जुन इसके ऊपर क्या उत्तर देता है भगवान को, बहुत ही सुंदर उत्तर देते हैं। वो बोलते हैं जीत निश्चित है मेरी। अभी देखिए आचार्य समाज समझाते हैं जीत यानी अर्जुन ये नहीं बोल रहा है कि कुरुक्षेत्र युद्ध, जीत यानी भगवान जिसके जीवन में है। जैसे संजय क्या कहते हैं, यत्र योगेश्वरो कृष्ण यत्र पार्थो धनुर्धर तत्र श्री विजय भूतिर ध्रुवा नीतिर मतिर ममा। जहाँ पे कृष्ण है वहां पे जीत है। तो जीत यानी आध्यात्मिक स्तर की बात हो रही है। जीत यानी ऐसा नहीं कि कुरुक्षेत्र का अगर युद्ध वो तो जितना ही है, भगवान है, लेकिन जब अर्जुन कहता है कि जीत निश्चित है मेरी, मतलब भगवान आप हमारे जीवन में है, आप हमारे मतलब हम आपके भक्त है, यही हमारा जीवन का विजय ही है। मतलब भौतिक जगत में आगे आना जाना, हारना जीतना, धन आना धन जाना, ये तो मतलब अपने कर्मों के हिसाब से चलते रहेगा। लेकिन आप हमारे जीवन में हो और आप हमको अपना भक्त मानते हो, आप अपना संग दे रहे हो, यही हमारे जीवन का विजयी है। तो ये हमको भी याद रखना है, भगवान हमारे जीवन में है, हम भगवान का नाम का जप कर रहे हैं, मतलब हमारा जीवन मतलब सही दिशा में चल रहा है। आप कभी भी उसकी तुलना ऐसा मत कीजिए, अरे मैं कब से एक ही फ्लैट में रह रहा हूँ, कब से यही जॉब में हूँ, कब से एक ही गाड़ी चला रहा हूँ, कोई मेरी भौतिक स्तर पे वृद्धि नहीं हो रही है या मैं प्रोग्रेस नहीं कर रहा हूँ, तो उसको कंपेयर मत कीजिए भक्ति से। आपको सही में अगर भक्ति का कंपैरिजन करना है तो देखिए कि मतलब आपका रुचि कितना बढ़ रहा है, आप कितने भक्तों का ज्यादा सेवा कर रहे हो, आपको कितने सारे भक्त का क्या बोलते हैं आशीर्वाद मिल रहा है। ये सब जब हो रहा है तो एक्चुअली यही हमारा भक्ति का वृद्धि का कंपैरिजन होना चाहिए, ना कि भौतिक स्तर पे हम लोग कितना आगे बढ़ रहे हैं। कभी कभी लोगों को लगता है भक्ति करना मतलब भौतिक जगत में वो तो टोटली कर्म के हिसाब से, और भगवान ना हमको एक्चुअली माया से बचाने के लिए जितना हो सके हमको ये सारे चीजों से दूर रखते हैं, खुद दूर रखते हैं। तो फिर अभी अर्जुन का उत्तर देखिए, जीत निश्चित है मेरी, दास नहीं रह सकता उदास, माखन लेके क्या करूं, जब माखन चोर है मेरे पास तो आप लोगों ने बहुत लोगों ने सुना रहेगा, तो फिर भी मैंने, तो ये है भक्त का भाव तो वो क्या कहते हैं कि मुझे माखन, जब पूरा माखन का फैक्ट्री मेरे पास है तो थोड़ा सा माखन जो लेके गए नारायण से, उससे मुझे क्या फर्क पड़ता है प्रभु। तो और वो क्या कहते हैं, दास नहीं रह सकता उदास। तो ये भी हमको विश्वास होना चाहिए कि जब हम कृष्ण के संपर्क में आते हैं, कृष्ण के शुद्ध भक्तों के संपर्क में आते हैं, तो वो जीवन सबसे ज्यादा मंगलमय जीवन है। हम लोग कभी भी उदास नहीं रह सकते। ये मंगलमय, इतना मंगलमय जीवन है कृष्ण भावना। तो ये उत्तर अर्जुन जो है भगवान को देते हैं। तो इस तरह से हमको भगवान के ऊपर विश्वास होना चाहिए, इतना मतलब। और इसलिए विदुर जी समझा रहे थे, मतलब धृतराष्ट्र को, उन्होंने कितना प्रयास किया कि अरे आप जो कर रहे हो बहुत गलत है। भगवान श्री कृष्ण, उनका जब उनके सर पे उनका हाथ है और उनके शुद्ध भक्तों को भगवान कभी भी वो बहुत ही अच्छा है कि भगवान का व्रत है। क्या है, प्रतिज्ञा तव गोविंद न मे भक्त प्रणश्यति इति स्मृत्य संस्मृत्य प्राणन सदारहम। मतलब एक भक्त कहते हैं कि भगवान, ये भौतिक जगत में ना बहुत कष्ट है, बहुत कष्ट, बहुत मतलब दुख है, लेकिन जब मैं आपकी प्रतिज्ञा का बारे में स्मरण करता हूँ, आपने क्या किया है, आपने प्रतिज्ञा लिया है कि इति
एत प्रतिज्ञा तव गोविंद, मतलब भगवान गोविंद ने ये प्रतिज्ञा लिया है, न मे भक्त प्रणश्यति, मेरा भक्त का कभी दुर्गति नहीं होगा। तो इसका जब मैं वापस वापस स्मरण करता हूँ तो ये प्राण मतलब प्राण रखने का मतलब जीवित रहने का मुझे शक्ति मिलती है। क्योंकि हम जानते हैं कि भौतिक जगत में हर कोई भक्त भी क्यों ना हो, कितना कठिनाई है, कितने कष्ट है, लेकिन भगवान ने ये प्रतिज्ञा ली है और सर्वधर्मान परित्यज्य, ये तो हम सब लोग जानते हैं, माम एकम शरणम व्रज हम त्वाम सर्व पापेभ्यो। तो मतलब ये प्रतिज्ञा जो भगवान ने ली है, तो हम लोगों को कितना उत्साह के साथ भक्ति करनी है, क्योंकि भगवान ने कहा है कि मेरे जो भक्त है उसका कभी दुर्गति नहीं होगा। अभी पॉइंट आता है कि हम लोग भगवान के भक्त के कैटेगरी में आते हैं कि नहीं। क्योंकि भगवान ने कहा है भक्त का दुर्गति नहीं होगा, अभी हमको देखना है कि हम भक्त के कैटेगरी में नहीं आते हैं कि नहीं। तो हम लोग भक्त के कैटेगरी में तभी आएंगे जब हम प्रामाणिकता से, जितना भी हमारी योग्यता है उस योग्यता से, प्रामाणिकता से, हमारे गुरु शिला प्रभुपाद, गुरु साधु शास्त्र जो कहते हैं ना, तो उन्होंने जो हमको कहा है, अगर वो प्रामाणिकता से हम लोग डेली कर रहे, प्रोसेस को फॉलो कर रहे, तो 100% हम लोग भक्त की कैटेगरी में आ रहे। क्योंकि भगवान देख रहे हैं कि मेरे शुद्ध भक्तों का वचन का ये बहुत प्रामाणिकता से पालन कर रहा है, भले ही उसके अंदर बहुत सारी त्रुटियां हैं, लेकिन वो अपने मतलब जितना भी उसके पास योग्यता है, जितना भी उसके पास शक्ति है, मनसा कर्मणा वाचा, इस तीनों से प्रामाणिकता से वो फॉलो करने की चेष्टा कर रहा है, बिना विदाउट डुप्लिसिटी, बिना क्या कहते बिना किसी मिथ्या के। तो जब हम इसको फॉलो करने का जब हम चेष्टा करते हैं तो डेफिनेटली हम भगवान के बुक में आते हैं, भक्तों के कैटेगरी में आ जाते हैं। तो हम भी फिर जैसे पांडवों की रक्षा भगवान ने की थी, हाँ, अनेकों जितने भी उनके ऊपर उनको मारने की जो योजना बनाई और हर चीज में भगवान ने जैसे उनको रक्षा की, हमको भी भगवान सदैव, और हम सब लोगों ने इसका अनुभव किया हुआ है, जैसे प्रभुपाद के और गुरु के जब हमने आश्रय लिया है, तब से हम लोगों ने इसका हमने बार बार इसका अनुभव किया हुआ है, भले ही छोटे ही स्तर पे क्यों ना हो, लेकिन भगवान हमको दिखा रहे हैं कि आप मेरे लिए प्रिय हो और मैं आपकी रक्षा करूंगा। इसका भगवान हमको बार बार हमने अनुभव भी किया और भगवान हमको दिखा रहे हैं। तो इसके वजह से धृतराष्ट्र ने खुद मतलब ऐसा नहीं कि उसको मौका नहीं था, बचपन से मतलब वहां पांडवों का संग मिल रहा था, बचपन से विदुर का संग मिल रहा था, हाँ, उनके भाई थे, लेकिन उन्होंने उस संग नहीं लिया। क्यों? अपने अहंकार, अपनी कूटनीति। तो कभी कभी साधु हमारे इर्द गिर्द होते हुए भी अगर हम उनका संग नहीं लेंगे तो हमारी दुर्गति होनी निश्चित है। तो मतलब धृतराष्ट्र अपना जो भाग्यशाली होने का जो एक अवसर था, उसको उसने दुर्भाग्यशाली में उसको परिवर्तन किया। तो इससे हम सीख सकते हैं कि भगवान हर योजना बना रहे हैं हम जीवों का उद्धार करने के लिए, लेकिन हम जीव इतने मतलब मोहग्रस्त है, इतने हम लोग इस भौतिक जगत में आसक्त हो गए हैं कि हम लोग उस जो भगवान हमारे लिए चाहते हैं उसका हम फायदा उठाना नहीं चाहते। और फिर भगवान क्या कर सकते हैं, क्योंकि भगवान तो किसी को फोर्स नहीं करेंगे, हाँ, क्योंकि हम लोग भौतिक जगत में आए थे ही एंजॉय करने के लिए, राइट, इसलिए भगवान ने हमको भेजा था। तो यहाँ पे भी अगर आके भगवान फोर्स करेंगे तो फिर वो क्या फायदा, इसलिए वो उन्होंने हमको स्वतंत्रता दी हुई है और भगवान चाहते हम वही स्वतंत्रता उनकी भक्ति करने में उसको उपयोग करें, जो हम लोग नहीं कर रहे हैं। मतलब बहुत सारे लोग, हम लोग भी अभी भी मतलब अभी भी भक्ति में भी आने के बाद अभी भी थोड़ा इधर उधर आसक्ति है, जो हमको पूरी तरह से उसको निकाल के केवल और केवल अपनी जो स्वतंत्रता है वो भगवान की भक्ति करने में उपयोग करनी चाहिए। नहीं तो हमारा भी हाल धृतराष्ट्र की तरह होगा, बहुत सारे भक्त आके हमको समझा के जाएंगे, लेकिन हम लोग समझने के लिए तैयार नहीं है, तो हमारा भी धृतराष्ट्र की तरह दुर्गति हो सकती है। फिर हम लोग भगवान को या भक्तों को या इधर उधर किसी को दोष देके हमारा मतलब कोई फायदा नहीं है। तो इसीलिए युधिष्ठिर जी ने बहुत समझाया धृतराष्ट्र को,
अगर वो तभी समझ जाते तो अच्छा था, लेकिन उन्होंने ये सारा युद्ध हो गया, अपने पुत्रों को खोया, और फिर जब विदुर ने देखा कि अभी तो प्यार से या अच्छी तरह से समझा के कुछ होने वाला नहीं, फिर उन्होंने बहुत बहुत कठोर शब्द का प्रयोग किया, और तब उनके अंदर थोड़ी बहुत अकल आई, और उन्होंने सब त्याग करके भगवान प्राप्ति के लिए वो निकल पड़े। तो हम लोग भी धृतराष्ट्र की तरह ना होते हुए हमारे साथ जितने सारे वैष्णव का जो संघ है उसका हमको पूरा लाभ उठाना है। वो जो हमको समझा रहे हैं, वो समझने की कोशिश करते हुए वो जो बता रहे हैं उसको हमको हमेशा उसका क्या कहते हैं उपयोग करना है। जैसे एक एक प्रभु जी ने बहुत ही अच्छा दामोदर लीला के साथ इसको मतलब जोड़ना चाहता हूँ। तो कह रहे थे कि यशोदा माई को हमेशा गोपियां आके समझाती थी कि आपका लाला जो है हमेशा आके हमारे घर में माखन चुराता है, मटकी फोड़ देता है, बच्चों को चींटी काट के उनको रुलाता है, लेकिन यशोदा माई बिल्कुल सुन नहीं रही थी। ये जस्ट वो जोड़ रहे, ये तो दिव्य लीला है, लेकिन हम लोगों को कैसे समझ सकते हैं। लेकिन जब वही हादसा उनके घर में हुआ, जब कृष्ण ने किया, फिर उन्होंने उनको लगा रहे ये तो सही बोल रही थी, और फिर वो कृष्ण को पकड़ने जाती है। तो वो प्रभु जी बता रहे थे कि हमारे जीवन में भी ऐसा होता है कि बहुत सारे भक्त हमको आके कहते हैं कि भक्ति करो, ये भौतिक जगत दुखालय में शाश्वतम है, यहाँ पे हमेशा दुख मिलेगा। तो हम लोग जैसे यशोदा माई सुनती थी, अरे हम मेरा खाना क्यों चोरी करेगा, हमारे घर तो 9 लाख गाय है, इतना माखन हमारे घर में हो, वो किसी के घर में क्यों जाएगा। तो हम भी सोचते अरे ये लोगों को पता नहीं क्यों ये जग दुख लग रहा है, इतना सारा यहाँ पे आनंद मतलब मजा लेने के लिए क्या क्या फैसिलिटी है, ये है। लेकिन अचानक जब उनके घर में कुछ दुख आ जाता है, बहुत ही बड़ी समस्या आ जाती है, फिर अचानक उनको लगता है। और उसी तरह वो कंपेयर करते कि यशोदा माँ को जब देखा उन्होंने कि अरे कृष्ण तो सही में है, मेरे ही घर में ऐसा किया उन्होंने, और फिर वो पीछे भागते। फिर हम लोग भागते, अरे वो भक्त के पीछे, अरे आप कुछ बता रहे थे कि माला करनी है, एकादशी करनी है, 4 नियमों का पालन करना। तो वो बता रहे थे कि जब भक्त आके समझाते तभी आप भक्ति शुरू कीजिए, जीवन में समस्या आने के लिए मत रुकिए। जैसे यशोदा माँ ने वो अनदेखा किया, लेकिन जब उनके घर में वो हुआ तो फिर वो कृष्ण के पीछे भागी। तो वो बता रहे थे कि जब कोई भक्त आके आपको समझा रहा है, आपका जीवन अच्छी तरह से चल रहा है, तभी भक्ति कीजिए, और अच्छा तरह से भक्ति होगी। मत रुकिए कि भक्त समझा के जाएगा, फिर आप उसको अनदेखा करोगे, फिर जीवन में एक दुख आएंगे, कुछ मृत्यु आएगी किसी की, या कुछ बहुत बड़ा समस्या, और फिर आप भागोगे, अरे अरे वो भक्त ने तो सही कहा था, चलो चलो भागते, कितनी माला करनी है, जप माला दीजिए, आपका सत्संग कहाँ होता है। उतना देर के लिए आप रुकिए मत, जैसे ही बताया तुरंत उसको ग्रहण कीजिए। तो बहुत अच्छा लगा ये एग्जाम्पल, तो किस तरह से दामोदर लीला के साथ उन्होंने कनेक्ट किया था। तो यही कह के मैं विराम देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। और आज कल हमारे घर निताय नाद्या बिहारी आए तो बहुत प्रसन्न हुए, क्योंकि भगवान आए, मतलब कुछ तो उनकी कृपा हमको मिलेगी, और आप सारे भक्तों की आशीर्वाद और कृपा की वजह से ये सारा हो रहा है। तो ऐसे ही आप अपना कृपा और आशीर्वाद बनाए रखिए। बहुत बहुत धन्यवाद, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। ऑल ग्लोरी टू श्रील प्रभुपाद। हरे कृष्णा प्रभु। थैंक यू प्रभु, बहुत अच्छा एज यूजुअल, बहुत अच्छा जैसा क्लास होता है, इट वाज वेरी नाइस, एंड बहुत अच्छे से जो धृतराष्ट्र का आसक्ति था प्रेजेंट किया। तो थैंक यू प्रभु, एंड कॉन्ग्रेचुलेशन कि गौरनीताई जो है कम टू रिसाइड इन योर हाउस। थैंक यू प्रभु। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। दंडवत प्रणाम। थैंक यू ब्रो, ऑल योर मर्सी ब्लेसिंग। थैंक यू ब्रो। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम आपको और सभी भक्तों को। और आज भाई तीज है, भाई तीज की सबको शुभकामना। साधु साधु प्रभु जी, आपने ये सत्संग आज के प्रवचन से प्रभु जी इतना अच्छा संघ का जो महत्व है उसके बारे में समझाया, और जो भाग्य के बारे में समझाया प्रभु जी, क्या भाग्य है, और जो धृतराष्ट्र ने क्या जो दुर्भाग्य किया उसके बारे में, और फिर जो भक्ति में जो हमारा जो अहंकार है वो कैसे बीच में आता है उसके बारे में भी इतना अच्छा समझाया। और जो आप बोल रहे थे प्रभु जी वो मुझे याद रह गया था प्रभु जी। तो
हार तेरी निश्चित है और दुर्योधन माखन ले गया। अर्जुन जी कहते हैं जीत निश्चित है और माखन चोर है मेरे पास। तो प्रभु जी ये बहुत प्रेरणादायक सूत्र है और इसके माध्यम से आपने एक एक से ये जो लाइन है उसको भी इतना अच्छा समझाया कि कैसे हमारी जीत होती है। और इसमें भी आपने एक बहुत अच्छा ये बताया कि हमें भी भगवान की जो भक्ति करनी है उसमें भी कोई डुप्लीसिटी नहीं रखनी है। तो बहुत सुंदर प्रभु जी आपने आज के जो प्रवचन है इसके माध्यम से समझाया प्रभु जी। और लास्ट में आपने जो दामोदर आरती जो ये दामोदर लीला से भी जोड़ा इतना अच्छा, उससे भी बहुत अच्छा सीखने मिलता है कि हमें जो यशोदा जी जैसे सबके नहीं सुनते हैं, बाद में जब उनको अनुभव होता है तभी वो समझते हैं। तो उसी तरह प्रभु जी ये हमें भी समझना चाहिए। ऑल गोस टू प्रभुपाद। हरे कृष्णा कुंजेश्वरी माता जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी, बहुत सुंदर दर्शन। मैं वही बोल रही थी प्रभु जी के घर पे कब है, गौर निताई बताया नहीं और आपने बताया, बहुत सुंदर था, बहुत अच्छा लगा। और जैसे अपने धृतराष्ट्र के बारे में कहा, 21 गुरु लोग आए थे उनके जीवन में, लेकिन किसी की नहीं सुनी अपने मन से कर। और जो भगवान के अंश अवतार है व्यास देव जी, वो खुद बार बार आके उन्हें बताते थे, फिर भी नहीं सुनता था। और जो आज के श्लोका का आपने कहा कि भक्त के साथ अगर भक्ति में रहे तो उनके साथ कभी बुरा नहीं होता, हमेशा भगवान उनके लिए अच्छा ही करते हैं। जैसे हमने देखा परीक्षित महाराज जब छोटे थे तो किस तरह भगवान ने उनकी गर्भ में रक्षा की, और जब उनका अंतिम समय आ गया तो उन्हें तक्षक नाग ने डस लिया और वो इस धरती से चले गए। ये सब दूसरे लोगों के लिए जो साधारण दृष्टि से देखते हैं, लेकिन भक्त है और वो देखेंगे तो किस तरह भागवतम, जो भगवान और भागवतम में कोई भी अंतर नहीं, वो भागवतम स्वयं भागवतम उनके लिए सुनाया जा रहा था। और भगवान के 2 अंश अवतार व्यास देव जी और नारद जी उधर सामने थे। तो अगर भक्ति में रहे अच्छे से तो भगवान किस तरह अंतिम समय भी कितना अच्छे से होता है वो समझ में आता है। हरे कृष्णा।